we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, it's a program that emphasizes our connection with God, which is the key for a better and prosperous life. यह ऐसा प्रोग्राम है जो परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध पर जोर देता है, जो कि कुंजी है बेहतर और संपन्न और आशीषित जीवन के लिए। And interesting thing is, the God who created us and the God who knows us wants to connect with us. और दिलचस्प बात तो यह है कि जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जो हमें जानते हैं, वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। And thank you for being a guest this time. And as you watch this program, I pray that our connection with God will continue to develop and improve. इस समय हमारे मेहमान होने के लिए धन्यवाद। जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आपका परमेश्वर के साथ का संबंध बेहतर होता जाए और उन्नति करते जाए। You know, the day we are recording this program is the Teachers' Day. अब देखिए, आज हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये तो टीचर्स डे है, यानी 5 सितंबर शिक्षक दिन है। I want to speak about teachers today. आज मैं शिक्षकों के बारे में बताना चाहता हूँ। As everyone is aware, Dr. Radhakrishnan's birthday is celebrated as the Teachers' Day. जैसे कि सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। He served as the Vice President of India, and when students went to him asking him to celebrate his birthday with him, he said to keep this day in honor of the teachers. और जब विद्यार्थी उनके पास में गए और उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने इस तरह से कहा कि आप इस दिन को अपने टीचर्स के साथ में मनाइए, अपने शिक्षकों का आदर करने के लिए मनाइए। So if you are a teacher watching this program, even if it comes after 2 days or 3 days, that doesn't matter. Happy Teachers' Day to you. अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं और ये प्रोग्राम कुछ दिनों के बाद में आता है, तो कोई भी बात नहीं, आपके लिए शिक्षक दिन बहुत मुबारक हो। We are all teachers in one way or the other. हम सब किसी न किसी तरीके से शिक्षक तो हैं ही। Because generally teachers are identified as someone who systematically trains students according to a particular syllabus that is prescribed. क्योंकि सामान्य रूप में सभी शिक्षक उन्हें जो सिलेबस दिया जाता है उसके अनुसार वो अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं। And very often that doesn't end there. और अक्सर देखा जाए तो ये सब वहीं पर खत्म नहीं होता है। Teachers share their lives with the students. शिक्षक विद्यार्थियों के साथ में अपना जीवन साझा करते हैं। I remember teachers who taught me from when I was very, very young. मुझे वो सभी शिक्षक याद है जिन्होंने मुझे बहुत ही कम उम्र में सिखाया था। Some of them I am in touch with. और उनमें से कुछ लोगों के मैं संपर्क में बना हूँ। Do you remember any of your teachers? क्या आपको अपने ऐसे कोई शिक्षक याद है, आप उन्हें जानते हैं? There may be many good teachers you can never forget. ऐसे बहुत से अच्छे शिक्षक होंगे जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते हैं। And sometimes the experiences you had with them is unforgettable, and definitely it will always remain with you that you can cherish. और कई बार उनके साथ के जो आपके अनुभव हैं वो आप भूल नहीं पाते हैं और आप हमेशा उन्हें अपने साथ में बनाए रखते हैं। You know, interesting thing is Bible talks a lot about teachers, good teachers. दिलचस्प बात है कि बाइबल शिक्षक या अच्छे शिक्षक के बारे में बहुत कुछ बताती है। You know, we speak from the Bible always. जानते हैं, हम हमेशा बाइबल में से बात करते हैं। Because it is this time is around Teachers' Day, I am talking about this. क्योंकि ये तो शिक्षक दिन का समय है और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। An interesting thing I read in the Bible is that the very ability to teach is given as a gift from God for those people who serve Him. दिलचस्प बात ये है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके लिए शिक्षा देने या सिखाने का जो वरदान है, जो भेंट है, वो तो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। In the book of Romans chapter 12 verses 6 to 7 we read about that. It says we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then
teach. रोमियो 12:6 ये कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। Therefore, if you are somebody who is teacher, then the Bible is saying teach, and in Ephesians 4:11 it says, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up. और इसलिए अगर कोई शिक्षक हो तो वो शिक्षा देने में जुड़ा रहे। बाइबल इफिसियों 4:11 में कहती है, उसने यानी मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये कहता है। So God appointed some people to be teachers. तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को सिखाने वाले या शिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। And definitely when we say it is a gift given by God, their ability to teach is coming from the empowerment from God or the power from God. और जबकि हम कहते हैं कि सिखाने की जो योग्यता है ये तो परमेश्वर ने दी है, तो उनकी शिक्षा देने की जो सामर्थ है वो तो निश्चय ही परमेश्वर की ओर से आती है। Because a gift is not something that you learnt and you teach, rather it is something that is endowed from above, from God. And interestingly, teaching is something as a gift, it is said in the Bible, as given by God. क्योंकि जो वरदान पाते हैं वो तो सीख कर नहीं पा सकते हैं, ये तो परमेश्वर ने दिया है। और दिलचस्प बात है कि ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है कि हम सिखाते जाएं। Who are the teachers in the Bible? बाइबल में शिक्षक कौन कौन हैं? Today I do not want to go into merely men who served as teachers in the Bible. I want to go back to even God. The Bible very clearly talks about as our teacher. आज मनुष्य जो सिखाने वाले थे उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे शिक्षक हैं। He teaches all those people who fear him according to Psalm 25:12. भजन संहिता अध्याय 25:12 के अनुसार वो उन सब लोगों को सिखाते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। It says, who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. ये कहता है वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। Isn't it interesting that God is teaching us the way as to what we have to choose in our life? अब ये दिलचस्प है कि परमेश्वर हमें वो मार्ग सिखाते हैं जो हमें चुनना है कि हम अपने जीवन में उस पर चलें। Because we are living in this world where in front of us a lot of choices are available. क्योंकि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर हमारे सामने बहुत से पर्याय उपलब्ध हैं। And you have a lot of options given to you. और आपके सामने बहुत से पर्याय रखे हैं। And God, He is saying, to those who fear him, in other words, to those who believe that he exists and follow his ways, he said he will teach them how to choose in their lives. और परमेश्वर उनके बारे में कहते हैं जो उसका भय मानते हैं, दूसरे शब्दों में जो ये चुनते हैं कि उसके मार्गों में चले, वो उन्हें सिखाएंगे कि उनके जीवन में कैसे चुन ले। That means God is interested in having this kind of a relationship with you. टीचर-स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब है परमेश्वर आपके साथ में ऐसा संबंध रखने में दिलचस्पी लेते हैं जैसे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में होता है। He teaches all the children. वो सभी बच्चों को सिखाते हैं। And Bible says in the book of Isaiah 54:13, it says, all your children will be taught by the Lord, and great will be their peace. यशायाह 54:13 कहता है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। इस तरह से यहाँ ये वचन कहता है। So God is trying to teach all his children. That's important to note here. परमेश्वर अपनी सभी संतानों को सिखाना चाहते, इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। Here you learn when you go to school and when you enroll in few subjects, you are learning in a classroom. ये ऐसी बात है जब आप किसी विषय के लिए अपने आप को एनरोल करते हैं और क्लासरूम में उसके बारे में आप सीखते जाते हैं। And I want to tell you this God I am talking about, who is one of our best teachers available in this world, even today, he says that he is very closely
very intimately involved in you, with you as he teaches you. और जैसे कि हम जिस परमेश्वर के बारे में आपको बता रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं, वो आपको सिखाते हुए आप में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। Another interesting verse found in Psalm 32, and it's verse 8. It says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. भजन 32:8 कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है। So what God is saying here, I will show you the way, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, but I will counsel you with my loving eye on you. लेकिन मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। That means I will be very, very close to you. मतलब मैं तेरे बहुत ही करीब रहूंगा And I am going to be with you, strengthen you in your choices as you walk along. और जैसे तुम मेरे साथ में चलते हो मैं तुम्हारे चुनाव में तुम्हें बल देते जाऊंगा और तुम्हारी उन्नति करते जाऊंगा। In this world, our father may teach you, your mother may teach you, and anybody else can teach you, but this counsel of God, this teaching of God is so close and intimate as we observe here. इस संसार में हमारे माता पिता हमें सिखा सकते हैं या कोई और भी सिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर की ये जो शिक्षा है ये बहुत ही नजदीक है और ये बहुत ही सटीक है। इसे हम यहाँ पर देखते हैं। And have you ever experienced his guidance, his counsel, his teaching? क्या आपने कभी उसके मार्गदर्शन, उसकी सलाह और उसकी शिक्षा का कभी अनुभव किया है? And I want to tell you, this Bible is talking about this God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल इसी परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। He is not a God who is far away. वो दूर के परमेश्वर नहीं हैं। He is a God who is near you, who is close to you. वो ऐसे परमेश्वर है जो आपके करीब है, आपके निकट हैं। Especially if you believe in Him, if you fear Him, according to these verses, definitely this God is going to help you to guide in your life wherever you have to go. Whatever choices you have to make. और खास करके अगर आप इन वचनों के ऊपर विश्वास करेंगे तो ये परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, चाहे आप जहां भी जाए, चाहे आप जो भी चुनाव करें उन सभी में आपका मार्गदर्शन करेंगे। Another very important thing I observed in the Bible about this God who is teaching us is this. He is teaching us again and again. एक और बात मैंने बाइबल में गौर की है, इस परमेश्वर के बारे में जो हमें सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो हमें बार बार सिखाते चले जाते हैं। Why teaching has to be given again and again? ये जो शिक्षा है ये बार बार क्यों देने की जरूरत है? It's because sometimes students or children, they do not listen. ये इसीलिए है क्योंकि कई बार जो विद्यार्थी, जो बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं। Sometimes his teachings are ignored, therefore he comes and says again. और कई बार उसकी शिक्षा को अनदेखा किया जाता है, इसलिए वो बार बार आकर बताते जाते हैं। He does that because of his love for us. हमारे लिए उसके प्रेम के कारण वो इसे करते हैं। Somehow he wants to teach us very, very clearly and thoughtfully. That is why he is doing it again and again. किसी तरह से वो हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से सिखाना चाहते हैं और इसीलिए वो हमें बार बार सिखाते चले जाते हैं। So Jeremiah chapter 32 verse 33. तो यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 33 यहाँ पर आइए हम देखते हैं। He is talking about the people of Judah. वो यहूदा के लोगों के बारे में कह रहे हैं। They turned their backs to me and not their faces. Though I taught them again and again, they would not listen or respond to my discipline. उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाते आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। इस तरह से यहाँ पर ये वचन बताता है। My dear friends, this is the lament that God has for the people of Israel or about the people of Israel. दोस्तों, इस्राएली लोगों के बारे में परमेश्वर यही तो विलाप करते हैं। And he says, they have turned their back on me. और वो कहते हैं कि उन्होंने मेरी ओर अपनी पीठ फेर ली है। And I've taught them again and again. और मैं उन्हें बार बार यत्न से सिखाता रहा। But they are not responding. तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। What a great heart our God has, dear friends. प्यारे दोस्तों, हमारे परमेश्वर का हृदय कितना महान है। My dear friends, he loves you as
somebody who believes in him. प्यारे दोस्तों, जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो निश्चय आपसे प्रेम रखते हैं। If you're someone who is trying to follow him, his care and his attention is on you. अगर आप उसके पीछे चलने की इच्छा रखते हैं तो उसकी परवाह और उसका ध्यान आपकी ओर होता है। His love is always available for you. उसका प्रेम हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है। He teaches us the way we should go. हमें जिस मार्ग में जाना है उसकी वो शिक्षा देते हैं। If you fear him, he will show you the way. अगर आप उसका भय मानेंगे तो वो मार्ग दिखाएंगे। He is not missing out on any students. He is teaching all the वो children. किसी भी विद्यार्थी को नहीं चूकते हैं, वो सभी बच्चों को सिखाते हैं And he is teaching again and again. और वो बार बार सिखाते हैं। What a great God we have. हमारे परमेश्वर सच में कितने महान हैं। I understand about this God who is a great teacher to us. इस महान परमेश्वर के बारे में समझिए जो हमारे लिए महान शिक्षक हैं। And when we spoke about God, he taught us very, very closely and in a very meaningful manner. We expressed that previously. और जब वो हमें सिखाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत ही स्पष्ट रीति से और सटीकता से हमें सिखाते हैं। Now, when you move to the Bible, we have another very, very important teacher, that is Jesus Christ. अगर हम बाइबल में आगे बढ़े तो हम एक और महत्वपूर्ण शिक्षक को पाते हैं जो कि यीशु मसीह हैं। An incomparable teacher. ये ऐसे शिक्षक है जिनकी तुलना में कोई नहीं। Bible says when he lived in this world, he was moving around. He went into the region of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom according to the word. बाइबल कहती है कि जब वो इस पृथ्वी पर थे तो वो गलील के प्रांत में घूमते फिरते और वहां पर उनके आराधनालयों में शिक्षा देते और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बताते। And Jesus' teaching is quite unique and very, very different from others. और यीशु की जो शिक्षा थी वो तो बिल्कुल अलग थी, बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग ऐसी शिक्षा थी। He taught them in parables a lot of things. उसने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातें सिखाई थी, उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें बताई। And saying a story and explaining the truth that he wanted to communicate to the people. वो कहानी बताते थे और फिर समझाकर बताते थे कि वो उन लोगों को कौन सी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। And sometimes the meaning of the parable was not clear to some people, but Jesus taught many things in parable. और कई बार दृष्टांतों में जो शिक्षा थी वो लोग समझ नहीं पाते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी शिक्षा दृष्टांतों में दी है। You know something, when he spoke very differently from others. और आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने बातें की या शिक्षा दी तो उसने दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग तरह से ही सिखाया। One of the major difference people observed when Jesus lived on this world is he spoke to people or he taught people with authority. यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब लोगों को शिक्षा दी, जब लोगों को सिखाया, तो एक बहुत ही विशेष बात है कि उसने अधिकार के साथ उन्हें सिखाया था। In the Gospel of Matthew chapter 7 verse 29 we read this. मत्ती अध्याय 7 वचन 29 में हम ये पढ़ते हैं। You know, this is the end of the Sermon on the Mount, a great teaching session Jesus had with his disciples. ये पहाड़ी उपदेश के बिल्कुल अंत की बात है। यीशु ने वहां पर महान शिक्षा दी थी। I'll read from 28. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. मत्ती अध्याय 7 वचन 29 वचन 28 से आइए पढ़ते हैं। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। So that people have experienced other teachers of the law. तो लोगों ने व्यवस्था के दूसरे शास्त्रियों से भी अनुभव पाया था। They heard from these people. उन्होंने इन लोगों से संदेश सुने। But the Bible very clearly says when Jesus spoke, he had authority. लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है जब यीशु ने शिक्षा दी तो उसने अधिकार से सिखाया। What do you think could be the reason for this authority? आपको क्या लगता है इस अधिकार के पीछे कारण क्या होगा? Simply because he is the Son of God? केवल इसीलिए कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। He knows what he was teaching. वो जानते थे कि वो क्या सिखा रहे हैं। He knows the people who are listening to him. और जो लोग उसे सुन रहे थे उन्हें वो जानते थे। And that is what gives us authority. और यही तो हमें अधिकार देता है। And today we as teachers need to know the students and their life so that we can teach them with authority. आज हमें अपने विद्यार्थियों को जानना है, उनके जीवन को जानना है
ताकि हम बड़े अधिकार के साथ में उन्हें सिखा सके। At the same time, we also need to know what we are saying very thoroughly and clearly so that we can teach with authority. और इसी के साथ में हम जो कह रहे हैं उसे हमें पूरी तरह से जानना है ताकि हम बड़े अधिकार से सिखा सके। You know, this kind of a thing was a surprise to the people who were listening to Jesus. ऐसी शिक्षा यीशु के सुनने वाले लोगों को हैरान करने वाली बात थी। They were wondering, where did this man get this wisdom? वो तो ये सोच रहे थे कि इस मनुष्य को ये बुद्धि कहाँ से मिली, Where did he learn? उसने ये कहाँ से सीखा। We don't know which school he went हमें to. पता नहीं ये कौन से स्कूल में I'm गया। not saying these things, dear friends. दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। In the Gospel of John, we read that actually. यूहन्ना के सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं। Maybe if you have some doubts, I'll read it for you. John chapter 7 verse 14 to 16. यूहन्ना अध्याय 7 वचन 14 से 16 तक, आइए इसे पढ़ते हैं। Not until halfway through the festival did Jesus go up to the temple courts and begin to teach. The Jews were amazed and asked, "How did this man get such a learning without having been taught?" जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई। इस तरह से वचन हमें बताते हैं। So they were surprised, they were amazed. यानी वो तो हैरान हो गए थे, वो तो चकित हो गए थे। But Jesus knew fully well that whatever he taught, it was actually given by God his Father. लेकिन यीशु अच्छे से जानते थे कि वो जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो तो उसके पिता परमेश्वर ने ही उन्हें दिया है। To some people he said, you know, my teaching is not my own, it comes from the one who sent me. Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। He is very clearly acknowledging that this teaching is not, it comes from my Father. वो स्पष्ट रूप में ये मानते हैं कि शिक्षा मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये पिता की ओर से आती है। So in a way he is acknowledging God the Father who gave him the wisdom. यानी वो इस तरह से इस बात को मानते हैं कि पिता परमेश्वर ने ही उन्हें बुद्धि दी है। That doesn't reduce Jesus and his power and status. और ये यीशु की सामर्थ्य या उसके स्टेटस को नहीं घटाता है। Rather he is telling, I and my Father are वो one. तो ये कह रहे हैं कि मैं और मेरे पिता एक हैं। So his teaching actually came from the Father. That's why he was able to speak with authority. उसकी शिक्षा जो है वो तो पिता की ओर से आ रही थी और इसीलिए वो अधिकार के साथ सिखा सके। And the one more important person who is teaching us from the Bible as we read is the Holy Spirit. और बाइबल के अनुसार जैसे हम पढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो हमें सिखाता है और वो तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। An interesting thing about Holy Spirit is the Holy Spirit of God is teaching us today, and at the point of our need, at the time of our need, Holy Spirit is speaking to us according to the Word of God. और देखिए, दिलचस्प बात तो पवित्र आत्मा के बारे में ये है कि हमारी ज़रूरत के अनुसार जो कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाता है। Suppose you were having some trouble, or some people are questioning you, authorities are asking you to share. अगर आपको कोई परेशानी है, अधिकारीगण आपको कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए कहते हैं, Give an explanation for what you are doing today. आज आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में विवरण देने को कहते हैं। Oh, Jesus told his disciples very clearly in Matthew 10:19 to 20. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. मत्ती अध्याय 10 वचन 19 और 20 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, यानी पवित्र आत्मा। So, Holy Spirit is going to speak through us. यानी पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बातें करेगा। In the Gospel of John chapter 14 verse 26, we have to read that verse. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. यूहन्ना 14:26 कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। What an amazing service available to us, my dear friends, from our God. मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कितनी अद्भुत सेवा उपलब्ध है। Teaching from the Holy Spirit that you and I have access to if we belong to Him, if we obey Him. अगर हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो हमारे लिए पवित्र आत्मा की शिक्षा उपलब्ध होती है। He is continuing to teach us every day. वो हर दिन हमें निरंतर सिखाते चले जाते हैं। Are you a good student? क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं? Are you someone who is listening to Him? क्या आप ऐसे हैं जो उसकी सुनते हैं? If you really want to be blessed, my dear friends, as you are listening to this message, I want to tell you, listen to God, listen to Jesus Christ, listen to the Holy Spirit. अगर आप सच में आशीष पाना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं आपको संदेश में बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की सुने, आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा सुने और आप पवित्र आत्मा की सुने। I want to conclude by reading Luke chapter 6 verse 40. लूका अध्याय 6 वचन 40, ये अंतिम वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। A student is not above the teacher is the idea brought out in this section. इस वचन भाग में विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक से बड़ा नहीं होता, ये विचार बताया है। 39th verse, 40th verse, let me read it. He also told them this parable. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. आइए लूका अध्याय 6 वचन 39 और 40 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताते हैं। And what an interesting comparison here, and also the teaching that is given by Jesus Christ. यहाँ पर कितनी दिलचस्प तुलना है और यीशु ने कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी है। A student is not above the teacher, कि जो चेला है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं है, but a student must be training every day to the fullness of the teacher. लेकिन जो चेला है वो तो प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करते जाए ताकि वो अपने गुरु के समान हो जाए। But everyone who is fully trained will be like his teacher. पर हर एक व्यक्ति जो पूरी तरह से ट्रेंड होगा वो तो अपने गुरु के समान हो जाएगा। What a wonderful God we have. हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। Friends, are you looking for guidance today? दोस्तों, क्या आज आप मार्गदर्शन पाना चाहते हैं? Oh, you have a lot of people to help you. आपकी मदद के लिए बहुत से लोग हैं। You may be having friends who will be very closely to be with you, to guide you. आपके करीबी मित्र होंगे कि आपका मार्गदर्शन करें। Maybe your father and mother can help you, guide शायद you. आपके माता पिता अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। I'm not denying all the help that is available today. आज आपके लिए जो मदद उपलब्ध है उसका मैं इनकार नहीं कर But रहा I हूं। want to tell you what the word of God very clearly लेकिन मैं says. बताना चाहता हूँ वचन क्या कहता है। God the Father, पिता परमेश्वर, His Son Jesus उसका Christ, पुत्र यीशु मसीह and the Holy और Spirit पवित्र आत्मा are always teaching us every वो day. हमेशा हर दिन हमें सिखाते जाते हैं। Will you listen to Him? क्या आप उसकी सुनेंगे? They are available to guide you, help you. वो आपकी मदद करने, अगुवाई करने के लिए उपलब्ध हैं। And He is a great God and very compassionate person, someone who knows you more than anyone else in this world. वो महान परमेश्वर है, वो करुणा से भरे हुए हैं और वो इस संसार में सभी लोगों से बढ़कर आपको जानते हैं। If you yield yourself to Him today, अगर आज आप उसे अपना समर्पण कर देते हैं oh, His guidance, His teaching is available to तो you. आपके लिए उसका मार्गदर्शन, उसकी शिक्षा उपलब्ध है And definitely you will not be disappointed. और निश्चय ही आप निराश नहीं होने वाले हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number